Okay, Jai Shri Krishna students. Today we are learning protein channels. Okay, part 1, pores. We are still learning the transport across the cell membrane. Reference book for detail I have used Boron and Bolop, Ganong, Guyton. Okay, so please keep writing. Have a pen and paper and please keep writing. Examples we have used from GIT, neuron, neuromuscular junctions. Ready? Renal system, collecting duct, and but it will make sense once your all systems are taken, but please keep writing. So how we reached on protein channels? So we started with a, as you know, transport, passive transports part was diffusion. We started simple diffusion, and during simple diffusion we are understanding the protein channels. Okay, ready? Okay, so now protein channels are of two types: pore, okay, transport waters and cation, and the gated channels, voltage gated and ligand gated channels. Okay, ready. So if you are asked as a short note or full question like protein channels itself, okay, then you have to write about pores also, channels also, and carriers also. But you understand that pores and channels are, they come under the simple diffusion, but carriers are facilitated diffusion. Okay, because diffusion is divided in two parts: simple diffusion and facilitated diffusion. Now, so what is the difference between pores and the, gated channels? So boron is messing with us, okay, very sarcastic. Just read the language of book. Channel is a gated pore and pore is a non-gated channel. Okay. So what pores have no ढक्कन, उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता, वो खुला चैनल ही होता है बस. But gated channel has a ढक्कन. It can open and close. Ready? तो पोर के पास कोई चोस नहीं, उसके पास ढक्कन नहीं है, बट गेटेड चैनल के पास गेट है, तो वो ओपन क्लोज हो सकता है, उसके पास कंट्रोल होता है. So pores are always open. So that's why they use the terminology that pores are non-gated channels. Okay, and channels are what? Gated pores. They're definitely messing with us. So pores, they are always open. Okay, ready? अभी मैं आपको अगर I will draw you a figure for, I will draw a figure for you. Look, आपने नारियल पानी पिया है ना, तो नारियल पानी का आपको स्ट्रॉ पता है ना, कैसा होता है स्ट्रॉ? राइट, कैसा होता है? यस, बराबर. ओके, सो ऐसा होता है. इट्स अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. पोर्स आर नथिंग बट अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. ओके, बट द डिफरेंस इज देयर इज बोथ वे दे आर ओपन. ओके, दोनों उसके एंड, अगर उसको आपने, ये स्ट्रॉ को आपने सेल मेम्ब्रेन में डाल दिया, मैं सेल मेम्ब्रेन करती हूँ ग्रीन, है ना, तो दिस इज अ सिंपल. इसको अगर आपने अक्रॉस द क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाल दिया, तो नाउ इट विल कनेक्ट द आउटसाइड ऑफ सेल टू द इनसाइड. ठीक है. अभी अगर इसी पोर के ऊपर आपने, मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे गेट डाल दिया. ठीक है, गेट डाल दिया, तो ये गेट अभी क्या है? ओपन स्टेज में है. ठीक है, और अभी कुछ स्टिमुलस आया या वोल्टेज का फेरफार हुआ, तो यही गेट क्या होगा? इट विल बी इन अ क्लोज स्टेट, तो ये एंड बंद कर देगा. सो नाउ इट इज व्हाट? A gated channel which is right now in a closed state. Understood? Very easy. So pores are always open. Now what is important is example of pores, है ना, हमारे फिजियोलॉजी के बुक में आते ही है. जब आप पूरा साल पढ़ेंगे ना, तब ध्यान देना कि कौन कौन से पोर है. तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी की, और यस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, उसकी शॉर्ट नोट ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट. जैसे कि मैं एक लिम्फोसाइट ड्रॉ करती हूँ, जस्ट हियर, ये है हमारा एक लिम्फोसाइट है, ये उसका बड़ा सा न्यूक्लियस है, और उसको कहीं से सिग्नल आया कि यहाँ पे एक रेड कलर का बैक्टीरिया है, उसको मारना है. तो नाउ व्हाट लिम्फोसाइट विल डू, है ना, ये
उसके बैक्टीरिया के अंदर ये छोटा सा एक चैनल डाल देगा, ठीक है, ये ग्रीन कलर का। अभी हम इसको एनलार्ज करते हैं। किसको एनलार्ज करते हैं? ओनली ये वाले पोर्शन को एनलार्ज करते हैं, ठीक है, रेडी। तो जैसे बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो रेड कलर का है, वो ऐसे दिखेगा, रेडी है ना, ये बैक्टीरिया पूरा बना दिया, ठीक है, ओके, उसके सेल वॉल के साथ। और ये जो था ग्रीन कलर का वो क्या था? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना, सिलिंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंटर्ड बाय लिम्फोसाइट, जबरदस्ती का, फोर्सफुली एंटर्ड, है ना, प्यार से नहीं लिया। बैक्टीरिया तो बोल रहा था मेरे को नहीं चाहिए। अब ये क्या करेगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनसाइड को आउटसाइड से जोड़ देगा, तो उसका सारा साइटोप्लाज्म बाहर जा सकता है ना, या फिर बहुत सारा आयोनिक इम्बेलेंस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली द बैक्टीरिया विल डाई, ओके। उसको क्या बोलते हैं? ये चैनल्स को क्या बोलते हैं? दे हैव नेम परफोरिन, है ना, परफोरेट कर देता है पूरे बैक्टीरिया में। और ऐसा एक नहीं, वो मल्टीपल चैनल्स घुसा देते हैं, ठीक है। So cytotoxic, that's why they are called cytotoxic. This is their way of killing, है ना, किसके? लिम्फोसाइट के। और वो ऐसे सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं ऐसे नहीं, they kill the bacteria plus the cancer cells, okay, plus our uh, process of apoptosis also, okay, right, ठीक है। नाउ दूसरा जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज एक्वापोरिन। अब ये एक्वापोरिन क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखो इधर अभी ऊपर जो लिखा है, नाउ दे आर एग्जाम्पल ऑफ गेटेड चैनल्स, है ना, तो मतलब कि पोर्स वाला इधर पोर्शन खत्म हो रहा है, बट आई विल, मैं आपको थोड़ा सा एक्वापोरिन समझाती हूँ, क्योंकि एक्वापोरिन ऐसे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एक दो बार 1 मार्क में और शॉर्ट नोट में पूछा हुआ है, तो व्हाट इज एक्वापोरिन, उसको समझने के लिए आपको ताल्लुक करना पड़ेगा पिट्यूटरी से। हमारी जो पिट्यूटरी है उसमें द स्पेसिफिक पोर्शन व्हाट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसमें से क्या रिलीज होता है? एडीएच। तो एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसका नाम ही बोल रहा है कि यूरिन नहीं होने देना, तो है ना, यूरिन नहीं होने देने का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एडीएच नहीं है तो जो डिसीज होता है उसको बोलेंगे हम डायबिटिस इंसिपिडस, डायबिटिस इंसिपिडस, ओके, रेडी। व्हाट इज डायबिटिस इंसिपिडस? कि अगर एंटी डायूरेटिक एडीएच वर्क नहीं कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वर्क नहीं कर रहा है, तो वी विल लूज लॉट्स ऑफ वाटर इन अवर यूरिन। कितना? एक दिन में 20 लीटर, है ना, तो इतना वाटर हमारे यूरिन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अभी वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए एडीएच क्या करता है ना, हमारे किडनी में। अभी मैं ये इरेज कर देती हूँ और आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाती हूँ एडीएच का, ठीक है। वी विल इरेज एवरीथिंग हियर, रेडी, रेडी। अभी देखो, अभी ये किडनी को वापस एनलार्ज करते हैं, ठीक है, रेडी, टेक अ पेन एंड विच इज अ रेड। सो ये आपका एक किडनी है, उसके किडनी में अंदर मेड्यूला होते हैं, है ना, जंक्शन होते हैं, तो उसके किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट इज नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, नेफ्रॉन इज ऐसा दिखता है। अब ये जब नेफ्रॉन है ना, ये एंड होता है तो एक पोर्शन आता है, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, है ना। ये कलेक्टिंग डक्ट में से आगे जाके फिर इट विल फॉर्म यूरिन, है ना। तो अगर कलेक्टिंग डक्ट में से हमने वाटर एब्सॉर्ब नहीं किया, दिस वाटर विल कंप्लीटली लॉस्ट इन यूरिन, ठीक है। तो अभी हमको कलेक्टिंग डक्ट का एक अपन सेल बनाते हैं, ठीक है, कि देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है, वो बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट का एक सेल है, ठीक है। ये सेल का क्या हो गया? ल्यूमेन साइड, जहां पे क्या यूरिन है, इसमें से अपने को H2O लेने का है, ओके। और ये हो गया सेल का बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो क्या है एडीएच? वो तो हार्मोन है, वो तो ब्लड में ट्रैवल करेगा। तो एडीएच का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल करते करते इधर आएंगे, इधर जुड़ जाएंगे, फिर ये उसके न्यूक्लियस को बोलेंगे नाउ यू मेक प्रोटीन। विच प्रोटीन? एक्वापोरिन, है ना, एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन प्रोटीन क्या है? Nothing but a straw-like structure. So under effect of ADH, nucleus will make a straw-like structure which will be inserted on a lumen side of a this cell, collecting duct cell. So ultimately what happens? H2O will be absorbed and will come inside the cell. तो ऐसे करके हम पूरा 20 लीटर जितना water we can absorb in a day. Otherwise it will be lost. Okay. So this was the aquaporins.
and they are what, aquaporins are what, pores, है ना, नॉन गेटेड चैनल। अभी देखो मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, बिकॉज दे आर, हाँ ये रहा मेरा पेन, बिकॉज दे आर पोर्स, है ना। आपने अभी ये कलेक्टिंग डक्ट का सेल, और ये रहा आपका एक्वापोरिन चैनल, ठीक है। तो उसका तो दोनों छेड़ा खुला है, ओके। तो इसने एक बार पानी चूसना चालू किया, तो ये कब तक करता रहेगा वाटर को एब्सॉर्ब, जब तक कि ये इसको इधर से आप निकाल नहीं देते स्ट्रॉ को, ठीक है, क्योंकि उसके पास गेट नहीं है, पोर्स आर ऑलवेज ओपन। तो अगर आपको जब भी वाटर का एब्सॉर्प्शन चाहिए, है ना, तो इसको इंसर्ट कर दो और जब भी आपको लगे कि बस नाउ आई हैव इनफ वाटर और मुझे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, तो क्या करो, इसको इधर से निकाल दो, ठीक है। दिस इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।